So, welcome all, and let's crack all 9th and 10th CBSE exams with us, along with top educators, quality content, great learning experience. So, let's crack 9th and 10th. So, let me check. Okay. So, I'm your educator, Shubhangi Sankadhar, and I have done BCA, I have done MCA with honors, I have done MTech with honors. I'm having 5+ years of teaching experience, and I'm author of various research papers. I filed 2 patents, and I'm passionate to teach and adapt new technologies. So basically, to get more updates on class 10th for having to know about the syllabus, notes, various things, you can join this Telegram channel, and surely you will get various benefits by joining this. You'll get, updating yourself time to time. So basically, an academy support anytime, anywhere learning. And how does it support? We have an academy learning app. Go to your Play Store and type an academy learning app. And then after, you go and click on the install button. Once you have installed the app completely, you go into the app and go under the manage goal section. Under manage goal section, select your class category. For example, if you're in class 9, then select class 9. If you're in 10th again, then you can go to class 10th. And if you need a 2 year of subscription, then you can select 10th and 11th, as you are in 10th, and you can go and select for class 11th also. Then go to the special classes, and there you can view your special classes. Okay, so the most important thing is my code SHUBH001. You can use this code and you can unlock various free plan, and moreover you can get a discount of 10%. Right? So how to apply this code? Go and search the Academy Learning app in the Google Play Store, and then click on the download button. You log in the app and select the goal. Then go and select the menu button. Then on the top left corner, there go and then select special. Here you can enter the invite code SHUBH001 is my invite code. You can enter it there and you can unlock various free plans. So what a table is? Before let's see HTML table, we should know what a table is. Table is something that have rows and have columns, है ना? Okay, so let me show you this thing. So we have something that have rows and has a column is known as table. So this vertical, when we divide the thing into vertical data, it is your column. So this is your column 1, column 1, 2, 3, 4, 5. ये आपके हो गए columns. Now here is your row. This is the horizontal part is your row. So this is your row 1, this is your row 2, and this is your row 3. So in this particular table structure, we have 5 columns and we have 3 rows. Clear है? So table is something that has rows and columns. So vertical is your column and horizontal is your row. So what HTML table allows us? HTML table allows web developer to arrange data into rows and column. मतलब अगर हमको data row and column में रखना है तो हम क्या करेंगे? We'll use this HTML table. Let me. So here is an example of the table. Here we have roll number, student name in class, and then we have certain data in it. And we learn to create such table today. This is the data. ठीक है?
तो हेयर रोल नंबर वाला this one and this one is your column for the table and these are your rows. Clear? Now how to create a HTML table. तो बेसिकली HTML टेबल क्रिएट करने के लिए हमें टेबल टैग चाहिए होगा, ठीक है। एंड ईच टेबल रो मतलब पहले तो एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए we'll have a table tag. This will tell कि टेबल हमारी जो है वो बनेगी, this is opening tag and this is your closing tag. फिर हर रो जो होगी वो tr मतलब टेबल रो टैग में डिफाइन होगी, एंड जो हेडर है वो टेबल हेडर टैग में डिफाइन होगा। देन जो आपका डेटा है सेल में, टेबल डेटा टीडी टैग जो है वो डेटा आपका टीडी टैग के अंदर डिफाइन होगा। अभी हम एक एक टैग करके सारे टैग्स यूज करेंगे, देन बेसिकली यू विल कम टू नो अबाउट ईच टैग वेरी इजली। तो अब अगर हम डिफॉल्ट बात करें, लाइक अगर हम कोई सेटिंग्स अपने से नहीं डालते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है, तो जो टेक्स्ट होता है टेबल हेडिंग का, मतलब सी ये हो गया आपका टेबल, और जो हमने सपोज ये हेडिंग लिखी है, जैसे ये रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, यहाँ पर क्लास हो गया, ये इनका जो टेक्स्ट होता है ये ऑटोमेटिकली बोल्ड होता है और सेंटर में होता है, मतलब बोल्ड भी होगा और सेंटर में होगा, ठीक है। और जो टेबल डेटा का जो टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट वो रेगुलर होता है, मतलब बोल्ड नहीं होता, वो रेगुलर टेक्स्ट होता है और लेफ्ट अलाइंड होता है, मतलब इन दिस वे। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल देयर ऑल्सो, तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो जो टेबल हेडर है वो बोल्ड होता है और बीच में होता है, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर, दिस विल बी एट द सेंटर, और यहाँ पे जो नेम है दैट विल बी एट द सेंटर, ठीक है। दिस बोथ थिंग्स विल बी एट द सेंटर पार्ट। फिर ये आपके लेफ्ट अलाइंड होते हैं, लेफ्ट अलाइन होगा 1 2 3 और बोल्ड नहीं होगा, ठीक है। नेम SHUBH, ठीक है, ABC XYZ, ये सब लेफ्ट में होंगे, क्लियर है। सो दिस इज हाउ बेसिकली योर डिफॉल्ट सेटिंग्स आर। क्लियर है सबको बच्चा? ओके, सो यहाँ पर मैंने ना एक बेसिक टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। सो यहाँ पर है आपका टेबल ओपनिंग टैग जो क्लोज हुआ है यहाँ स्लैश टेबल पर, ठीक है। फिर आता है आपका टेबल रो, तो टेबल रो ओपन हुआ क्लोज हुआ, तो उस टेबल रो में हमने हेडिंग डाली, मतलब जो हमारी फर्स्ट रो है हेडिंग वाली, हेडिंग हमें कैसे मेंशन करनी है, TH से, तो दिस इज योर फर्स्ट रो, इसलिए हमें हर चीज उस टेबल रो के अंडर में लिखनी है। देन वी हैव पुट इट द हेडिंग 1, फिर उसको क्लोज कर दिया, फिर वी हैव पुट द हेडिंग, कितनी भी हेडिंग्स डाल सकते हो, पर वो सारी हेडिंग्स जो भी पुट होंगी वो इस टेबल हेडिंग के बिटवीन में पुट होंगी। फिर दूसरा अगर हमने टेबल रो क्रिएट किया, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में क्या डालेंगे, TD, और TD में हम डालेंगे टेबल डेटा, ठीक है। तो दिस इज योर टेबल डेटा, एंड कितने भी टेबल डेटा आप पुट ऑन कर सकते हो उस टेबल रो के अंडर में। तो लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दिस। Okay, so let's go towards example। ये हमारा यहाँ पर है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, टेबल है जिसमें देखो हमारा अभी हमने टेबल का कोई बॉर्डर नहीं दिया इसलिए बॉर्डर नहीं आ रहा, आप देख रहे होगे बाय डिफॉल्ट जो हमारा, लेट मी ओपन दिस एज वेल, मैं आपके लिए ये ओपन भी कर देती हूँ, टेबल 1, इसका कोड में ओपन कर देती हूँ, ठीक है। तो सी यहाँ पर हमने क्या किया, टेबल 1 में हमने दिया है my first HTML table, तो this is your heading my first HTML table। then comes your what, tables type, हमने width 100% दे रखी है, एंड जो हमारा टेबल रो है उस टेबल रो में हमने क्या क्या डाला है, टेबल हेडिंग में रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और क्लास।
सो वी हैव पुट इट हियर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड क्लास, एंड ये सारे किस में आ रहे हैं, ये हमारे सेंटर में सारी डेटा वैल्यूज आ रही हैं। एंड देन कम्स योर, हमारा ये क्लोज हुआ, नेक्स्ट टेबल आई जिसमें हमें डेटा डालना है। तो दिस इज योर डेटा, देखो ये बोल्ड भी नहीं है और ये लेफ्ट अलाइंड है सारा, 01 राम और 8। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे 008 श्याम 7। ठीक है, तो ये हमारी रो एक एक करके डिफाइन की है। तो दिस इज योर रो, एक रो एक बार में डिफाइन हुई है, 01 राम और 8। ठीक है, फिर दूसरी रो डिफाइन हुई है 008 श्याम और 7। तो इसी तरीके से हमारी रो यहाँ पे देखो हमने डिफाइन की है। टेबल डेटा में 001, फिर टेबल डेटा सेकंड क्या है, राम और 8। तो ये आपकी एक पूरी रो आपकी मेंशन यहाँ पर हमने कर दी है। सिमिलरली सेकंड रो अगर आपको करनी होगी तो दोबारा टेबल रो का टैग लगाएंगे और उसको क्लोज करेंगे, एंड वो पूरा कंटेंट आप उसमें टेबल रो में डाल देंगे। देन सिमिलरली थर्ड, वंस ऑल द 3 कॉलम्स, और ऐसे कितने भी कॉलम्स आप क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन ऑल दीज 3 कॉलम्स हैव बीन क्रिएटेड, आप टेबल टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, एंड योर टेबल हैज बीन डन, राइट। So this is basically how we are using a table. Clear है I guess? तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो let's execute this program as well. This is your program. फाइल पे जाएंगे, ओपन करते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर ओपन होगा ये, ऑल फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड हियर इज योर फर्स्ट प्रो के नाम से होगा ना, फर्स्ट प्रो। ओके, फर्स्ट प्रो को हमने ओपन किया। मुझे ओपन विद HTML करना चाहिए था। जस्ट अ सेकेंड, we'll open our first pro, open with Google Chrome। ये आ गया हमारा, देखो। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। इसमें जो हमने कंटेंट में डेटा देखेंगे आप, हमने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पे टेबल रोड दिया, टेबल हेडिंग में हमने फर्स्ट नेम दिया, फिर उसे क्लोज किया, फिर लास्ट नेम दिया, फिर उसे क्लोज किया, फिर एज दिया, एंड ये आपका टेबल रो, पहली वाली जो टेबल रो है वो क्लोज हो गई। फिर हमारी सेकेंड टेबल रो स्टार्ट होती है जिसमें जिल स्मिथ और 50 आ रहा है, फिर ये टेबल रो क्लोज हो गई। सिमिलरली आपने थर्ड टेबल रो दी जिसमें ईव, जैक्सन एंड 94 आ रहा है, एंड ये वाली भी टेबल डेटा आपका क्लोज हो गया। देन कम्स योर TR टैग, मतलब टेबल रो क्लोज हो गई। तो 3 यहाँ पर हमारी रोज हैं, एंड 3 हमने TR टैग्स यूज किए हैं, हर एक रो के लिए एक TR टैग है। एंड TH है तो टेबल हेडिंग, जो बोल्ड और सेंटर्ड, मतलब बोल्ड होगी और सेंटर्ड होगी। एंड जो TD है दैट इज योर टेबल डेटा, एंड दैट विल बी लेफ्ट अलाइंड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एंड लेफ्ट अलाइन होने के साथ साथ वो बोल्ड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो डेटा है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज, राइट। ये हमारा प्रोग्राम था जिसने हमारी टेबल जनरेट कर दी थी। एंड नहीं क्लियर हुआ है तो आप एक बार वापस से रिकॉर्डिंग पे जाइएगा, दोबारा से सुनिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली किस तरीके से डिवाइड हुआ है ये, पहली चीज हम छोटा सा देखते हैं। TR है हमारा, लेट्स काउंट हाउ मेनी TRs डू वी हैव। We have this one TR and this is closed. We have the second TR, this is closed, this is closed, and we have this third TR and this is closed. तो मतलब हमारे पास 3 रोज हैं, फर्स्ट TR की, सेकेंड TR की एंड थर्ड TR की। इतना क्लियर है। आप टेबल हेडिंग पे गए तो टेबल हेडिंग इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। टेबल हेडिंग में फर्स्ट आएगा फर्स्ट नेम, ऐसे ही आएगा सेकेंड नेम, सॉरी इट्स लास्ट नेम, लास्ट नेम, एंड ये आया एज, थर्ड TH, टेबल हेडिंग।
ठीक है, तो दिस इज योर एज, ये सेंटर्ड होगा। फिर आते हैं, अब सेकंड, ये वाली रो क्लोज हो गई, मतलब दिस फर्स्ट इज कंप्लीटेड। अब सेकंड पर आए, सेकंड रो में क्या बोला, फर्स्ट पे आया आपका क्या, जिल, ठीक है, एंड सेकंड पे आएगा स्मिथ, एंड थर्ड पे आएगा 50। तो दिस इज ऑल्सो बीन डन एंड दिस इज क्लोज, कंप्लीटेड। फिर थर्ड आता है, थर्ड रो स्टार्ट हुई यहाँ से। तो फर्स्ट डेटा क्या आया, ईव, सेकंड आया जैक्सन लास्ट नेम में, एंड एज में आया 94, एंड टेबल हैज बीन क्लोज। ये आपका थर्ड टैग हो गया। तो आई होप अभी क्लियर हो गया होगा कैसे स्ट्रक्चर बना है टेबल का। आगे बढ़ते हैं। सो टीडी एक डेटा कंटेनर की तरह काम करता है, मतलब जो टेबल डेटा होता है वो डेटा का कंटेनर होता है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा है वो आपका टेक्स्ट डेटा हो, इट कैन बी इमेजेस ऑल्सो। उसके अंदर एक और टेबल भी आ सकती है, मतलब अ टेबल विद इन अ टेबल। वो जो टेबल डेटा हमने यहाँ पे लिखा, तो ये डेटा इज अ कंटेनर। तो इसके अंदर एक टेबल भी आ सकती है, इमेज भी आ सकता है, टेक्स्ट भी आ सकता है, लिस्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। Let's see this example also. Mm, just a second. ओके, सो देखो यहाँ पर हमने इमेज डाली है, ठीक है, इमेज डाली है माय फर्स्ट HTML टेबल पर। अगर हम गए एंड लेट्स गो इनटू दिस कोड, ये कोड पे जाते हैं एंड इसका नाम है टेबल 1। तो विल गो टू टेबल 1, नोटपैड, okay, so here we come. Let's go to a code again. तो ये जो हमारी टेबल 1 विद इमेज है, तो टेबल 1 विद इमेज का हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेबल 1 विद इमेज है इसका नाम। तो we'll open this notepad and now we'll see this code and then we'll compare it कि what actually I'm trying to say. तो यहाँ पर मैंने बोला कि यू आर हैविंग अ रोल नंबर, आपने स्टाइल डाला माय फर्स्ट HTML टेबल, एंड वहाँ पर आपने बॉर्डर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अ 1 पिक्सल, तो ये आपका 1 पिक्सल बॉर्डर आपका आ गया, इस वजह से यहाँ पे बॉर्डर शो हो रहा है। और बॉर्डर इज इन एंटायर टेबल, टेबल हेडिंग, टेबल डेटा। जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मेंशन होंगे स्टाइल में, वही एट्रीब्यूट्स आपके, हाँ, उन्हीं उन्हीं एट्रीब्यूट्स पे बॉर्डर पुट ऑन हो रहा होगा। देन कम्स योर टेबल, इस पर आते हैं। हमने उसकी जो स्टाइल रखा है टेबल का, उसकी जो विड्थ है वो 10% है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको आप इंक्रीज डिक्रीज करके देखेंगे तो वो टेबल जो विड्थ है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फिर आप आते हैं टेबल हेडिंग जैसे भी बनाई थी, तो ये रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास और पिक्चर, ये हमारे यहाँ पर आ गया। फिर अब हम देखो फर्स्ट टेबल रो में क्या है, 1, राम, 8, और ये है हमारा लास्ट, एक हमने इमेज इंसर्ट की है, rose.jpg। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ रोज, जो अभी हमारी क्या है, कैसे इंसर्ट करते हैं ये हम कल वाली क्लास में देखेंगे, इमेज इंसर्शन करने का। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली हम यहाँ पर कोई भी डेटा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इमेज डाली हुई है, हम इसको बॉर्डर को भी बढ़ाना सीखेंगे, जब बढ़ाएंगे तो देन वी कैन व्यू दिस इमेज क्लियरली। तो दिस इज हाउ बेसिकली वी आर putting the image into this टेबल। इवन इमेज के अलावा हम इसमें और भी टेबल डाल सकते हैं, लिस्ट डाल सकते हैं, बहुत कुछ पुट ऑन कर सकते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट, हाइपरलिंक डाल सकते हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो हम इसमें पुट ऑन कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट डेटा 1, सेकेंड डेटा राम, थर्ड डेटा 8 एंड फोर्थ डेटा इज योर यहाँ पे पिक्चर, मतलब आपकी जो इमेज है वो मैंने यहाँ पे पुट ऑन की हुई है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड हम आगे बढ़ते हैं फिर इसके साथ। सी कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है, कुछ भी है, तो यू नो वी कैन, विल हैव अ क्लास टुमारो, यू कैन आस्क द डाउट टुमारो इटसेल्फ। मोर ओवर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके छोड़ दीजिएगा अपना डाउट।
I will read it and careful I will reply you there. ये तो आपका हमारा हो गया कि हम टीडी में क्या क्या चीजें पुट ऑन कर सकते हैं, राइट. देन कम्स योर टेबल बॉर्डर. टेबल बॉर्डर के लिए आप सिंपल बॉर्डर कंटेंट भी डाल सकते हैं. एक सीएसएस की जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है वो भी और आप पुट ऑन कर सकते हैं. टेबल THTD जैसे भी हमने यूज किया था 1px और कलर उसका है सॉलिड ब्लैक. ये तो टेबल वन बॉर्डर के कोड पे अगर हम जाते हैं, टेबल वन स्लैश बॉर्डर, इसके कोड पर हम गए. अब सी मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर बॉर्डर आपका पहले आप एक बार देख लीजिए. दिस इज योर बॉर्डर, ठीक है. अब आई एम गोइंग टू चेंज हेयर. 1px है ना, इसको 10px कर देते हैं. फाइल पे गए, सेव किया एंड वील रिफ्रेश दिस. सी बॉर्डर आपका 10px होने के साथ ये जो पॉइंट है ये आपका और डार्कन अप हो गया है. तो दिस इज हाउ बेसिकली हम कितने पिक्सल्स लगा रहे हैं. px's और पिक्सल्स, तो हमारे 10 पिक्सल्स का वो बॉर्डर हो गया है. तो दैट इज वाई इट हैज बीन कवर्ड विद ब्लैक, ठीक है. मोर ओवर अगर हम इसको 3 पिक्सल्स में देते हैं एंड लेट्स सेव दिस, लेट्स रिफ्रेश इट, तो ये आपका 3 पिक्सल्स का बॉर्डर हुआ. लेट्स चेक. ओके, एवरीथिंग इज फाइन. ये आपका 3 पिक्सल. सी यहाँ पे पिक्सल साइज बढ़ गया. जितना पिक्सल साइज बढ़ाओगे ये जो ब्लैक पोर्शन है ये आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है, राइट. तो वो आपके पिक्सल्स इंक्रीज कर रहे हैं. देन आपकी टेबल स्टाइल की जो विड्थ है वो 10 है, इसको हम 20% कर देते हैं. नाउ वील सेव दिस, सेव रिफ्रेश. ये देखो आपकी जो विड्थ है टेबल की वो और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है. इसको हम 50% अगर कर देते हैं तो इसका साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगा. विड्थ जो होगी आपकी और ज़्यादा आपकी इंक्रीज हो गई है. तो दिस इज योर बेसिकली विच एट्रीब्यूट, हमारा विड्थ एट्रीब्यूट जो हम बढ़ाते जा रहे हैं. फिर सिमिलरली अब तो टेबल रो क्रिएट करना आ ही गई है. टेबल रो में हमने हेडिंग डाली, देन हमने उसमें डेटा डाला. ये जो है प्रीवियस टेबल में ही हमने चेंजेस किए हैं. बस इसमें मैंने आपको क्या नया बताया है, इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है, दिस टेबल स्ट्रक्चर, कैसे आप विड्थ उसकी बढ़ा सकते हो, ठीक है. विड्थ इज हॉरिजॉन्टली कैसे उसको स्पैन मतलब बढ़ा सकते हो. और ये जो बॉर्डर आपने पुट किया हुआ होगा, ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को कैसे आप स्मॉल एंड लार्ज कर सकते हो. सो दिस वाज अबाउट योर टेबल बॉर्डर, ठीक है. तो अभी हम आते हैं फर्दर, ठीक है. टेबल बॉर्डर क्लियर है. बॉर्डर टेबल क्रिएट करा है हमने किससे, टेबल THTD. एंड दिस इज योर सिंटेक्स बॉर्डर. जितना भी पिक्सल होगा उसने अकॉर्डिंग आपका बॉर्डर एडजस्ट हो जाएगा. 1 2 3 4 इसके अकॉर्डिंग आपका बॉर्डर एडजस्ट हो जाएगा. अब नाउ कम टू योर कोलैप्स बॉर्डर. कोलैप्स बॉर्डर अभी देखो आपको यहाँ पर लाइंस दिख रही होंगी ना, 2 लाइंस हैं. तो अब हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, हमको उस बॉर्डर को कोलैप्स कर देना है. तो बॉर्डर कोलैप्स के लिए हम इन तीनों पे ये लगाएंगे. THTD टेबल पर बॉर्डर हमारा ये है और उसको बॉर्डर कोलैप्स एंड फिर हमें कोलैप्स करना है. तो लेट्स सी. अब देखो आपको एक ही बॉर्डर दिख रहा है. पहले अर्लियर वाले में देखो आपने 2 बॉर्डर्स देखे थे. सी ये 2 आ रहे हैं लाइंस, उसको हमने कोलैप्स करके एक ही लाइन में कर दिया है. अब इसको हम बॉर्डर कोलैप्स के कोड पर जाते हैं and let's experiment with this also and I will show you. Open with notepad, ठीक है. यहाँ पे हमने ये सिंटेक्स यूज किया, कोलैप्स दिस एंड बॉर्डर का साइज हम अगर बढ़ा देते हैं एंड 3px कर देते हैं. लेट्स सेव दिस. तो क्या हो जाना चाहिए बच्चों, ये हो जाना चाहिए जो बॉर्डर का आपका अभी हम देख रहे थे जो बॉर्डर अर्लियर, अभी मैंने सेव किया, रिफ्रेश नहीं किया. दिस वॉज वेरी थिन. आई एम रिफ्रेशिंग इट. 3 पिक्सल किया तो ये जो बॉर्डर है ये थिक हो गया. जितने ज़्यादा पिक्सल्स बढ़ाते जाएंगे, 3 की जगह 5 10 12 करेंगे तो आप उसको और ज़्यादा क्या करोगे, थिक करते जाओगे, ठीक है. कोलैप्स बॉर्डर पे आते हैं, ठीक है.
ऐसे ही विड्थ अगर इसकी बढ़ा दोगे तो दिस विल बी और 50% अगर हमने कर दिया तो ये जो छोटी सी टेबल दिख रही है ये थोड़ी लार्ज दिखने लगेगी दिस वे। ठीक है, तो सिमिलरली हमने क्या देखा, विड्थ टैग उसकी विड्थ बढ़ा देता है एंड जो हमारा px है 1px 2px वो इसकी मोटाई जो होती है बॉर्डर की दैट इज बीइंग डिसाइडेड। एंड कोलैप्स मतलब जो बाय डिफॉल्ट होता है वो दो लाइंस दिखती हैं आपकी टेबल बॉर्डर में, कोलैप्स कर देते हैं तो वो एक ही लाइन हो जाती है। ठीक है, दिस फॉर्म्स अ सिंगल लाइन, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं अभी। there are various files have been opened, so let me close first of all these files. ओके, सो हमारे आगे जो प्रॉपर्टी है हम उस पर आते हैं, दैट इज व्हाट योर HTML टेबल सेल पैडिंग। तो देखो हमारा सेल पैडिंग क्या होता है, जो हमारा कंटेंट होता है सेल का, ठीक है, मतलब सेल कंटेंट और बॉर्डर के बीच में। लेट मी शो यू हियर, ये हमारा सेल हो गया, इसका बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है दैट इज योर पैडिंग। सपोज यहाँ से मैंने ए लिखना स्टार्ट किया तो दिस इज योर पैडिंग, सेल पैडिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर। कंटेंट जहां से लिखना शुरू किया वहां और उसके बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है दैट इज योर सेल्फ पैडिंग। अगर हम उसको नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो वो विदाउट पैडिंग ही शो होते हैं, पर अगर आपको पैडिंग शो करनी है तो वही पैडिंग एट्रीब्यूट यूज करके आप उसकी विड्थ मेजर करके बताओगे कि दिस इज योर बेसिकली द विड्थ ऑफ द पैडिंग दैट इज योर ट्राइंग टू यूज। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। सी दिस इज योर सेल पैडिंग, यहाँ पे हमने स्पेस मेंशन की है तो इसके हम अलग अलग पैडिंग यूज करके हम अलग अलग तरीके से इसको टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका कोड देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो पैडिंग दे रखी है बेटा ये 50 पॉइंट्स की दे रखी है। तो अगर मैं इसको रिड्यूस कर देती हूँ 20 कर देती हूँ, हमने बॉर्डर देखो कोलैप्स भी किया इसीलिए सिंगल लाइन भी आ रही है। एंड लेट मी सेव दिस, देन आई विल गो एंड रिफ्रेश हियर। अब देखो 20 किया तो वैसे ही सेल पैडिंग जो हो गई, सेल का साइज जो हो गया, सारे सेल्स का साइज जो पैडिंग साइज हो गया वो हो गया डिक्रीज। देन अगर इसको हमने 70 पॉइंट्स किया तो ये लार्ज हो जाना चाहिए, जो भी 50 था उससे भी ज़्यादा लार्ज हो जाना चाहिए। सेव किया, रिफ्रेश किया, सी दिस इज हाउ योर टेबल इज टर्निंग आउट लार्ज। जितनी ज़्यादा पैडिंग करोगे तो ये स्पेस उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, राइट। क्लियर है ये? देन कम्स टू आवर नेक्स्ट पार्ट, अलाइनमेंट जो हमारा टेबल का होता है। हाउ इज आवर अलाइनमेंट वर्किंग? तो सी हमारा अलाइनमेंट कैसे होता है, वेयर इज माय पीपीटी, ओके। सो टेबल अलाइनमेंट, देखो अलाइनमेंट क्या होता है उससे पहले आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। फर्स्ट थिंग, सी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट एन अलाइनमेंट इज। राइट, अलाइनमेंट आपका लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, टॉप, बॉटम। मतलब यू आर हैविंग अ टेबल, लेफ्ट अलाइनमेंट में यहां से स्टार्ट होगा कंटेंट, ठीक है, राइट अलाइनमेंट में कंटेंट यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, टॉप या एक जस्टिफाई होता है, सॉरी जस्टिफाई होता है तो कंटेंट इज जस्टिफाइड एंड देन योर बॉटम। तो इस तरीके से हम अलग अलग अलाइनमेंट्स यूज कर सकते हैं। लेट्स गो एंड टू आवर पीपीटी बैक, है ना। तो हमारी जो ऑटोमेटिक टेबल हेडिंग्स होती हैं वो बोल्ड और सेंटर्ड होती हैं, ठीक है।
So basically let's check it. ओके, सो ऑटोमेटिक जो हमारी टेबल हेडिंग्स होती हैं वो बोल्ड और सेंटर्ड होती हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, हाँ, तो हमारी बोल्ड एंड सेंटर टेबल हेडिंग होती हैं. यहाँ पे हम लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, टेबल हेडिंग्स यूज कर सकते हैं और सीएसएस टेक्स्ट हम डाल सकते हैं. देखो ये एग्जांपल है हमारा टेबल हेडिंग का. टेक्स्ट यहाँ पे हम लेफ्ट अलाइन करेंगे. सो लेट्स गो टू दिस एग्जांपल. हमारा जो लेफ्ट अलाइनमेंट में होगा वो किस तरीके से होगा. लेट्स क्लिक ऑन इट. सो बेसिकली एग्जाम्पल पे जाते हैं एंड हेयर इट इज. सो यहाँ पे हमने टेबल को लेफ्ट अलाइन किया है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारा कंटेंट क्या आ रहा है, आपकी लेफ्ट साइड में आ रहा है. ओके, सो इसका हम कोड पे अगर जाते हैं, अलाइन के कोड पे. सो दिस इज आवर अलाइन कोड. नोटपैड. ठीक है, यहाँ पे हमने देखो, आपने यहाँ पे अगर आउटपुट एक बार नजर डाली होगी इस आउटपुट पर, तो देखो पहली चीज हम इसमें सारी अपनी प्रॉपर्टी एक बार रिव्यू कर लेते हैं. अलाइनमेंट में हमने हेडिंग डाली, दिस इज माय फर्स्ट HTML टेबल, और हमारी हेडिंग आ गया है H2 हेडिंग. देन हमने स्टाइल में क्या लिखा है, टेबल THTD पे जो हमने बॉर्डर डाला है दैट इज 1px. ठीक है, तो 1px का बॉर्डर है जो कोलैप्स्ड है, मतलब हमारे पास सी टू लाइन्स ऑफ बॉर्डर्स नहीं आ रहे हैं, देयर इज अ सिंगल लाइन ऑफ बॉर्डर. एंड अगर हम कोलैप्स नहीं करेंगे, ये लाइन हटा देंगे, तो हमारा जो बॉर्डर होगा वो कैसा हो जाएगा. चलो इसको देखते हैं कैसा हो जाएंगे. देयर विल बी टू बॉर्डर्स दैट विल बी विजिबल. इसको सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, देखो यू कैन सी दीज टू बॉर्डर्स नाउ. एंड यहाँ पे 1px की जगह 3px डाला, सेव किया, तो हमने क्या किया, रिफ्रेश किया, उसका जो साइज ऑफ द बॉर्डर दैट हैज बीन ब्रॉडन्ड अप. एंड लेफ्ट है एंड बोल्ड है, सो हम उसको राइट करके देखें देन क्या होता है. सेव करते हैं, तो अब ये लेफ्ट सेंटर टेक्स्ट आ रहा है, अब ये राइट सेंटर्ड राइट में टेक्स्ट आ गया. ठीक है, सिमिलरली आपने कई सारी पैडिंग्स यूज की होंगी, सॉरी कई सारे अलाइनमेंट्स आप वर्ड में भी देखते होंगे, लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, जस्टिफाई हो गया, राइट हो गया, तो दोज अलाइनमेंट वर्क हेयर ऑल्सो. राइट, तो आप अपनी टेबल में भी उसी अकॉर्डिंग टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से. ना बॉर्डर स्पेसिंग बेसिकली सेल्स जो हमारे हैं, सेल इज व्हाट, सेल इज what, let me draw the cell for you. So this is your cell. अब सेल के बीच में कितनी स्पेसिंग है ये बॉर्डर स्पेसिंग बताता है. तो सेट द बॉर्डर स्पेसिंग हम क्या यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी. सो लेट्स गो टू दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल पर जाते हैं. नाउ सी, ये है हमारी सेल स्पेसिंग 10px हमने इसको दिया है. जैसे जैसे रिड्यूस करते जाएंगे इसको, उसी अकॉर्डिंग हमारी सेल स्पेसिंग भी रिड्यूस होती जाएगी. सो लेट्स गो हेयर, स्पेसिंग पर जाते हैं, इसके कोड पर. नाउ ना व्हाट वील डू इज वील ट्राई टू चेंज इट एंड लेट्स सी द इफेक्ट. सो हेयर इट इज. तो यहाँ पे बॉर्डर 2px है एंड बॉर्डर स्पेसिंग 5 है, तो 5 इज लुकिंग अ बिट लार्जर, तो हमने इसको 3px कर दिया. देन वी सेव्ड इट, हमने उसको सेव किया, इट इज सेव नाउ. रिफ्रेश किया, देखो अब ये स्पेसिंग यहाँ पर कम हो गई, तो जितनी ज्यादा हम स्पेसिंग कम करते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी यार. और हम इसको अगर नंबर इसका इंक्रीज किया तो वो स्पेसिंग और ज्यादा हमारी बॉर्डर सेल्स के बीच में हो जाएगी. देखो अभी हमने 10 करा एंड देन वी रिफ्रेश्ड इट, सी हाउ मच द स्पेसिंग इज देयर. आप सेल्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ती ही जा रही है.
जितनी ज़्यादा स्पेसिंग करोगे उतना ज़्यादा वो इंक्रीज होगा, जितनी कम स्पेसिंग करोगे उतनी ज़्यादा सेल्स आपके नियर बाय आ जाएंगे। ठीक, और ये तो टेबल का स्ट्रक्चर हो गया, टेबल एंड हेयर इज योर स्पेसिंग जो आपकी इंक्रीज होती जा रही है। सो बेटर इज वी विल पुट हेयर 1 pxc एंड सी 1 pxc डाल के क्या हो जाता है, वो बिल्कुल नियर बाय हो जाएंगे। देखो सेल की स्पेसिंग बिल्कुल कम हो गई है। ठीक है, सो 0 px करके देखते हैं। 0 px अगर हम करेंगे तो क्या होगा, सेव किया, रिफ्रेश किया, कोई स्पेस नहीं बची, दैट इज इक्वल टू कोलैप्स। गॉट इट। तो अगर हम 0 स्पेसिंग करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू कोलैप्स, हमारा बॉर्डर हो गया कोलैप्स। राइट, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। आई होप ये प्रॉपर्टीज क्लियर है। नहीं क्लियर है दोबारा वीडियो देखिएगा एंड यू विल गेट क्लियर्ड। स्टिल नॉट क्लियर देन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू टुमारो। HTML टेबल सेल दैट स्पेन मेनी कॉलम्स। अब क्या होता है, हमारे पास जो सेल स्पेन है वो एक से ज़्यादा कॉलम के लिए यूज़ करना है, तो हम कॉल स्पेन यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक सेल को हमने स्पैन किया है 2 पार्ट्स में, इंग्लिश एंड हिंदी, राइट। एंड इसके अगर हम कोड पे जाते हैं, इसके कोड पर जाते हैं तो हम बॉर्डर कॉल स्पेन को, let's view the code here with notepad, right? And then what we saw here is, ये देखो टेबल जो हेडिंग है उसमें हमने कॉल स्पेन 2 डाला है सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कॉल स्पेन 2 है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 अगर होगा तो सिमिलरली कॉल स्पेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। बट मैंने अभी प्रोग्राम में जो हमने आगे किया है उसकी वैल्यू 2 ही डाली है, इसलिए वो आपका यहाँ पर 2 ही शो हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे और चेंजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। इंग्लिश, हिंदी एंड टीडी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, हर चीज में चेंज करना पड़ेगा। टीडी विल बी मैथ, डेटा भी तो डालेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने पुट ऑन किया दिस डेटा, लेट्स कॉपी इट। देखो इंग्लिश, हिंदी एंड वील पुट मैथमेटिक्स। सिमिलरली हमारे पास 3 रोज हैं, इंग्लिश, मैथ एंड वील पुट हेयर, सपोज दूसरा सब्जेक्ट डाल देते हैं, मैथ्स इज ऑलरेडी देयर, वी पुट हेयर जीके। तो सेव किया, सी। अब ये 3 हमने पहले दिया था बट कोई चेंजेस नहीं आए थे क्योंकि हमने डेटा नहीं दिया था। देन आई पुटेड हेयर द डेटा, 2 बार मैंने मैथ्स दिया है, 2 बार एक बार जीके। तो इट्स 3 कॉलम्स में स्पैन कर गया वो कॉल स्पैन। एंड देन कॉल स्पैन 3 कॉलम्स में स्पैन करने के बाद वहां पे जो भी हमने डेटा अपडेट किया वो आ गया, करेक्ट। इसको 4 भी कर सकते हैं पर कोई इफेक्ट आएगा क्या, कब तक नहीं आएगा, जब तक हम उसमें कोई डेटा वैल्यू नहीं देंगे। तो हमें पहले उसका स्पैन अगर हम कर रहे हैं तो हमें डेटा भी देना पड़ेगा साथ साथ। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब कैप्शन, टेबल में कैप्शन ऐड करने के लिए आपको कैप्शन टैग यूज करना पड़ेगा। सी दिस इज योर टेबल कैप्शन स्टूडेंट्स डेटा। यहाँ पर ये दिस, अभी तक हम ये कैप्शन यूज नहीं कर रहे थे बट व्हेन यू विल मेक अ वेबसाइट यू हैव टू यूज द कैप्शन, एंड जिसके लिए हमको कैप्शन टैग यूज करना पड़ेगा। एंड देन वी कैन चेक द कोड, कैप्शन चेंज करके देखते हैं हम। सो वी हैव हियर कैप्शन टेबल 1 स्टूडेंट्स डेटा, जो कि आपको विजिबल है, कैप्शन टेबल 1 स्टूडेंट डेटा। एंड हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, ओनली स्टूडेंट डेटा भी कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं टेबल को, फाइल किया, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे केवल चेंज हो गया स्टूडेंट डेटा। क्लियर है? होप क्लियर ही होगा। ठीक है, देन कम्स योर एंड ऑफ दिस टेबल एंड आई होप ये क्लियर होगा। नहीं क्लियर है दोबारा एक बार वीडियो देखेगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
So to join the Academy quiz, what you have to do is search the Academy Learning app in the Google Play Store, click on the download, log in there, and after login, what you have to do is you have to go and select the goal. First select the menu button, then select the plus, select the label test in the tab at the bottom of the screen. Click the option join quiz and enter the code. Then wait for the educator or host to the quiz, and if you like the video, click on the like button, subscribe it. How to subscribe? Just click on the bell icon and let's crack CBSE 9th and 10th. Thank you. We'll meet tomorrow, and of course, Happy New Year to everyone.